regarding that what is the curriculum? Anyone? Malik Muhammad Mudassar, sir, could you please like to say something regarding to it? I told you because of the internet issues, we were on a short break and we are back with the bang and we are going to start whatever is remaining. Yeah, all right. So we were discussing the subdivisions of the curriculum, which were the benchmarks. 1 से लेके 5 तक different benchmarks हैं, 6 से 8 तक different हैं और उसके बाद set of instructions हमारे benchmarks जो हैं वो differentiate हो जाते हैं according to the level of the learner we are catering. जैसे आपको पता है कि स्कूल भी डिवाइडेड है प्राइमरी में, मिडिल में और जो है वो हायर सेकेंडरी में. So that's why today we are discussing the benchmarks regarding to the grade 6 and grade 8. This is the benchmark. Anyone from the audience, would you like to please read it for me? The benchmark regarding to grade 6 to 8. For English, anyone? This is regarding to the A competencies and I've told you before कि जब मैं A की बात करूंगी तो उसका मतलब है oral and communication skill. हम जैसे जैसे further आगे curriculum को पढ़ते जाएंगे तो we are not going to read the complete phrase. We are going to denote it with A. ठीक है? तो what oral competency of A wants us to do? We want our learner to listen, respond to the various variety of spoken audio visual text, increased level of difficulty. So now we are increasingly rising the level of difficulty according to the understanding of the learner, because now we are dealing with the sixth grader जो कि अब जो है वो difficult level से थोड़ा सा ऊपर आ गया है. Now he is able to read and decode and he has learned the phonics. Now he is not a struggling reader, he is an avid reader. तो हम क्या चाहते हैं कि वो listen करे, रिस्पॉन्ड करे, अप्लाई करे, कॉम्प्रीहेंड करे, इंटरप्रेट करे. क्या आप देख रहे हैं कि इस करिकुलम में देयर आर वैरायटी ऑफ एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स. इन वर्ब्स के थ्रू हम अपने इस मटेरियल को एड्रेस करेंगे. हम चाह रहे हैं हमारा लर्नर लिसन भी करे, रिस्पॉन्ड भी करे, अप्लाई करे उस नॉलेज को जो अब वो सीखेगा. कॉम्प्रीहेंड मीन्स कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे अपने टेक्स्ट को according to the level of his grade and interpret, समझे इंफॉर्मेशन को और अपने अल्फाज में इसको बयान करने के काबिल हो जाए. Why? Because we understand the capability of our learner at this stage. क्योंकि अब वो struggling नहीं रहा है. ठीक है? So this is how benchmarks are broken down. They are specific measurable standards. ये ऐसे standards हैं जो कि मेजरेबल है, ये अप्लाई किए जा सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है. दे आर सेपरेट बेंचमार्क्स फॉर ऑल ऑफ दीज लेवल एंड टुडे टारगेटेड एरिया इज grade 6 and 8. Yeah. So benchmark is further divided into SLO. Can you please someone read it from the PPT? Anyone? For me? All right. All right. I will read it for you. So it's the most important thing in this slide that SLO is simple and achievable. सबसे खूबसूरत बात SLO की ये है कि आप ये सिंपल है, इसको समझा जा सकता है टीचर लेवल पर भी, स्टूडेंट लेवल पर फिर बेशक नहीं, लेकिन टीचर लेवल पे इसको समझा जा सकता है और इसको अचीव किया जा सकता है क्योंकि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द करिकुलम फ्रॉम वेयर SLO से ही हम बुक्स बनाते हैं और SLO ही को हम चाहते हैं कि टीचर इसको अंडरस्टैंड करें और टेक्स्ट पढ़ाने की बजाय SLO को समझाया जाए, टेक्स्ट के थ्रू उसको अप्लाई किया जाए और अपने लर्नर की स्किल्स को इन्हांस किया जाए. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो. सो दिस इज एन ओवरव्यू of an SLO regarding to the competency of A. I've told you आगे पूरी फ्रेज नहीं लिखी जाएगी बल्कि फ्रेज आपने A को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है. तो anyone from the audience, could you please tell me if I'm talking about A1, which sub competency is this? Anyone, please.
I wish this could be an interactive session. Please, anyone. If I say this is A1, yes, oral. Thank you so much, Ms. Sakina. If I say this is A1, it means this is the competency of the oral. Don't you think that oral and speaking competency is the most deprived competency in our classrooms? हम अपनी classrooms में इस competency इस तरह से related questions को छोड़ देते हैं या करवाते हैं? आप बताइए, क्या ओरल से रेलेवेंट क्वेश्चंस की एक्टिविटीज आप क्लास में करवाते हैं या छोड़ के कहते हैं चले जी हम रीडिंग के क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं या राइटिंग का जो पोर्शन है इसको पूरा कर लेते इसको रहने दो क्योंकि ये तो इस पे तो मार्क्स नहीं मिलते, इसका तो पेपर भी नहीं होना. यस, एंड दिस इज वेयर वी फेल. हमारे पास यस दिस इज वेयर वी फेल. हमारे पास एम फिल करके स्टूडेंट्स आ जाते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. उनको स्ट्रेस और इंटोनेशन का ही नहीं पता क्योंकि हमने शुरू से इसकी बोलने की पेस ही नहीं बनाई है. हमने इसको सिखाया ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, आंसर कैसे करना है. एंड दिस इज नॉट फूल्स मैन ड्रीम. दिस इज अचीवेबल and we are working on it for the past 10 years. If I say for the past 10 years, I mean it. Read my lips. We are working on this deprived competency in Cantep for the last 1 decade. Yes, हमने इस पे काम किया है, हमने इस पे ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं, हमने इसको अहमियत दी है और हमने ऐसे लेसन्स प्लान बनाए हैं जहाँ पर लर्नर्स जो हैं वो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी कर सकें, अचीवेबल एक्टिविटी कर सकें क्लास में और टीचर इसको जज करें. इफ़ द टीचर इज़ नॉट फुली इक्विप्ड हाउ टू डू इट, तो हमने अपने लेसन्स प्लान्स के साथ वीडियोस भी बनाई हैं और वो नेट पे अपलोडेड हैं. इफ़ यू गो टू आवर book, there is a certain QR code with every activity. और अगर आप ओरल कॉम्पिटेंसी ओरल की जो भी क्वेश्चन है कैंटअप की बुक में उसमें एक साथ QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो ओरल की एक्टिविटी आपने क्लास में कैसे कंडक्ट करानी है, देयर इज अ होल वीडियो ऑन इट. और अगर आपकी क्लास में ये फैसिलिटी है तो आप वो टीचर वो वीडियो स्टूडेंट को दिखा दे और उसके बाद अपनी एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सके. देयर आर सर्टन स्कूल्स इन लाहौर, I'm not going to name them, जो कि ओरल और स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं. मसलन अगर उनकी असेसमेंट है, क्वार्टरली असेसमेंट है, तो वो उन बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाते हैं. दे लिसन टू अ सर्टन डॉक्यूमेंट्री और दे वॉच अ सर्टन डॉक्यूमेंट्री एंड देन दे हैव अ वर्कशीट और वो सुनने के बाद उसको फिल करते हैं. फिर वो क्या करते हैं, यानी कि लिसनिंग की एक्टिविटी ऐसे करवाते हैं. फिर स्पीकिंग के लिए क्या करते हैं, दे प्रोवाइड देयर लर्नर 2 or 3 पिक्चर डिस्क्रिप्शन. और वो one by one teacher call them and they look at the picture and they describe or they tell the questions written at the end of the picture description. तो इस तरह उनकी स्पीकिंग की एक्टिविटी भी हो जाती है. तो ऐसी चीज़ों को अगर आप कोई हेड सुन रहा है तो आप ये एक्टिविटीज़ अगर तो मंथली नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट 2 times a year करवा लें. ठीक है, और इस तरह की क्लास की एक्टिविटीज़ क्लास में हो सकती हैं. अगर इफ़ यू डोंट इवन हैव अ लाइब्रेरी तो टीचर एक दिन पेपर से पहले स्पीकर और लैपटॉप ले जाए और एक कोई भी ऑडियो प्ले करे और वर्कशीट बना ले उससे रेलिवेंट. और मज़े की बात है, इफ़ यू आर अफिलिएटेड विद अस तो हमारी ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ की वीडियोस जो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में पूरी पूरी वर्कशीट्स हैं. इमेजिन इमेजिन देयर इज़ नो बर्डन ऑन अ टीचर. उसने जो भी पढ़ाना है वो वीडियो क्लिक करे, समझ ले उसने कैसे पढ़ाना है. और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ उसकी लेक्चर की पीपीटी मौजूद है बल्कि वर्कशीट्स भी मौजूद हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. और वो वर्कशीट ना सिर्फ डाउनलोडेबल हैं, दे आर एडिटेबल एज वेल. उनको आप एडिट कर सकते हैं. एंड वी हैव अ फैसिलिटी फॉर अ पेपर मेकर फॉर दोज हु आर एफिलिएटेड विद अस. अगर आपने क्लास वर्क में सेपरेट काम करवा लिया तो आप जो है पेपर मेकर के थ्रू एक ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं जो काम लर्नर्स ने अभी तक अपनी कॉपीज में नहीं किया. तो वी हैव painstakingly designed all of the syllabus with the videos, with the relevant material, and yet again the basic resource is the curriculum. curriculum ने ही हमें इस काबिल किया कि हमने उसको अच्छी तरह पढ़ा, उसके एक्शंस वर्ड्स को समझा और समझने के बाद we are now capable to understand how to design a book and how to facilitate a teacher to go to the class and teach to the learner of this new era. Any ambiguity so far? Any question in your mind? Because we are halfway through.
I would like to hear from your side. Would you please like to interact and ask me anything regarding to the curriculum so far? I hope this would be an interactive session. Do you like me bilingual? Or you are getting me? Thank you, Professor Ali. You are always a great help. But do you want me to be bilingual? Or you are grasping, absorbing whatever I'm saying? Please, अगर आप if you don't want to talk, आप chat box में आके मुझे बता दीजिए. Which language do I prefer? Should I prefer? Oh, that's good. You're getting in English already. That's a good point. So yet again, thank you so much. You know what? If you are teaching in a far off area, in a remote area of any village or a town, there is no harm done in being bilingual. आप अपनी बात पहले अपनी लोकल जुबान में कहिए, फिर उसको उर्दू में कहिए, फिर इसको इंग्लिश में कहिए. इसमें कोई हार्म नहीं है. हम समझते हैं कि हमारा बच्चा 3 जुबानें सीखेगा, 4 सीखेगा. There is no harm done in it. Your child is not going to get confused. I bet on it. He is not going to get confused. अगर आप एक ही चीज़ को अपनी लोकल जुबान में फिर उर्दू में और इंग्लिश में बताएंगे, उसके वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है? He is capable of understanding. Don't underestimate the power of a mind of a child even. अच्छा मुझे बताइए, मुझे बताइए कि how many words an adult female talk during the day as compared to the male adult? Yeah, anyone? You know, once the professor said a male adult can speak 25,000 words per day. और जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने 25,000 वर्ड्स बोल चुका होता हूँ और मेरी बेगम जो है वो अपने 30,000 अल्फाज बोलने का आगाज करती है. Yeah? Imagine speaking 30,000 words a day. Yes. Okay. तो you don't have to worry. अगर आप बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं क्लास में तो होइए इन द स्टार्ट, लेकिन इंग्लिश पे फोकस कीजिए. अपना वही जुमला पहले उर्दू में बोल लीजिए और फिर ठहर ठहर के इंग्लिश में भी उसमें बात कीजिए. उससे बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, वो हरगिज कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है? in this era, even if he is from a remote area, there is no need to worry. The human brain is fully capable of understanding at least 3 to 4 languages at the same time. Yeah. So let's move forward. So this is what a curriculum looks like, and this is the subcompetency of oral and communication, जिसमें आप देख सकते हैं कि grid बना हुआ है. This is for grade 1. This is for grade, this is grade 1. This represents grade, and this represents SLO. This is for grade 2, 3, 4, 5, but we are focusing on grade 6, 7 and 8. अब इस के थ्रू मैं आपको प्रोग्रेशन ग्रिड समझाऊंगी. प्रोग्रेशन ये है कि 6 को का डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगा, 7 का उससे एडवांस होगा, 8 का इसको एडवांस होगा. तो हम पीछे से अपने लर्नर को सिखाते सिखाते 8 तक ले जाएंगे with the help of the curriculum which is designed very wisely and yet again understood by the authors of the Cantor publisher wisely and incorporated in their books as well. तो समझिए जरा इसको. हम क्या चाहते हैं? अच्छा, ये जो न्यू करिकुलम है, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्शन वर्ड्स. ये एक्शन वर्ड्स के थ्रू आपको बताता है, ठीक है, कि आपने किस चीज को कैसे इनकलकेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, डिवेलप. व्हाट डू यू मीन बाय डिवेलप? व्हाट डू यू मीन बाय डिवेलप? इज इट सिमिलर टू रिकग्नाइज और अंडरस्टैंडिंग, और इज इट समथिंग व्हाट डिफरेंट? बताइए. हम चाहते हैं कि वो डेवलप करे. पहले से इसको नॉलेज है कि कॉन्वर्सेशन कैसे की जाती है, लेकिन इस एज पे वो डेवलप कर ले अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल को, जिसमें क्लैरिटी हो और वो इंगेज करे लिसनर को. 7th में आके वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाए, वो अडेप्ट करे स्पीच को, जिसमें नॉन वर्बल जेस्चर्स भी हैं, मूवमेंट्स टू मीट एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ सिचुएशंस. डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रोल प्ले के थ्रू वो अब जो है वो क्या करे, वो अडेप्ट करे स्पीच को. ये एंड 8 में हम क्या चाहते हैं? हम नहीं, एसएलओ हमसे क्या चाहता है
कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स जो कुछ उसने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे एनहांस हुआ, अब वो उसको शो करे। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स शो द एबिलिटी, ठीक है, बाय टॉकिंग। शो द एबिलिटी, it must have been confidence हो, being able to attend to the change of content and spoken, यानी कि अब पहले वो सिर्फ डेवलपिंग की स्टेज पर हो, फिर उसको वो अडेप्ट कर ले, एंड देन अब वो शो करने के काबिल हो जाए. सो दिस इज द प्रोग्रेशन ग्रिड ऑफ द स्पीच given to us, a complete set of instructions given to us by the national curriculum, and this is how we have to develop. So why there is a need to tell to a teacher कि आपने इन चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो 6 के ग्रेडर से 8 की कैपेबिलिटी को एक्सपेक्ट मत करें, यानी कि 6 ग्रेडर वैसा एक्ट ना करें जैसा 8 में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करें, ठीक है. यस, यूटिलाइज. सो this is where the magic happens. अगर we are talking about the prose and the poetry, तो हमने क्या किया है, हमने very wisely we have taken little SLOs for the poetry and difficult and larger or larger in quantity of SLOs for the prose, क्योंकि prose में हम चूंकि टेक्स्ट ज़्यादा लेते हैं और उस टेक्स्ट के थ्रू हम ज़्यादा स्किल्स को जो है वो सिखा सकते हैं. Remember, we are not going after the text, we are going after the SLO. हमारे पास tools के तौर पर टेक्स्ट यूज होता है, उस टेक्स्ट के थ्रू हम अपने स्किल्स डेवलप करवाते हैं जो कि एसएलओ की फॉर्म में हमें नेशनल करिकुलम में दिए हैं. तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू. यू डोंट हैव टू go to your national curriculum book and search out the SLOs कि अच्छा मैंने आज प्रोज पढ़ाना है तो कौन से मुझे SLOs पढ़ाने होंगे. There is no need to worry about because we have already done it for you. All right. तो हमने intelligently we have adopted a new methodology of teaching language, not only English but Urdu as well. Let me tell you one thing, when I tell you about vocabulary and grammar तो इसका मतलब है words, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, action words करवा रहे हैं. हम क्या करवा रहे हैं, हम position words करवा रहे हैं. हम क्या करा रहे हैं, हम describing words करा रहे हैं. तो वी आर टीचिंग वर्ड्स. उन वर्ड्स को मिलाकर हम एक सेंसिबल सेंटेंस बनाते हैं जो कि आंसर की शक्ल में है. जब 2 या 3 सेंटेंस लिंकिंग वर्ड के साथ मिल जाते हैं फिर वो पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाते हैं. तो टेल मी, इफ आई हैव टू टीच समथिंग वेरी न्यू टू अ लर्नर, what should I choose first to teach? Should I go for paragraph? मैं इसको पहले पैराग्राफ सिखाने लग जाऊंगी, फिर मैं सेंटेंस पे लाऊंगी, फिर मैं वर्ड पे लाऊंगी, या मैं पहले वर्ड सिखाऊंगी और फिर सेंटेंस और फिर पैराग्राफ? What is the right way? Anyone? What is the right way of teaching English language or any other language to a learner who is first time in the class, regardless of the grade? Words, yes. हम पहले उसको वर्ड्स सिखाएंगे, फिर उस वर्ड के थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे और फिर उन सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम पैराग्राफ की तरफ लेके जाएंगे. आपको पता है आप लोग और हम पाकिस्तानी कौम अब तक क्या करते रहे हैं, हम पैराग्राफ्स पढ़ाते रहे हैं. हम क्लास में गए, हमने कहा कम ऑन ओपन अप योर बुक, टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, और हमने पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू कर दिए. ठीक है, बच्चों को भी सेंटेंस नहीं बनाना आया, बच्चों को भी वर्ड्स नहीं बनाने आए. तो आर वी डूइंग इट द राइट वे? No, we are not doing it the right way. We are making it very difficult for our child to comprehend. So here we should teach our learner the word first. और वर्ड में कैसे सिखाऊंगी, वोकैबुलरी की एक्सरसाइज करके. इसलिए आप कैंटर की जब भी बुक खोलेंगे तो आप हर चैप्टर के स्टार्ट में वोकैबुलरी और ग्रामर का पोर्शन देखेंगे. सो देयर इज अ होल फिलोसफी बिहाइंड इट, क्योंकि ग्रामर के थ्रू हम सिंगल वर्ड सिखा रहे हैं, ग्रामर भी सिखा रहे हैं, और जितनी एक्टिविटीज हमने डिजाइन की हैं दे आर इनडायरेक्टली रिलिंक्ड टू द टेक्स्ट. तो हमने पहले वर्ड सिखाया, नेमिंग वर्ड सिखा दिया, डिस्क्राइबिंग वर्ड सिखा दिया, कॉमन एंड प्रोनाउन, आर्टिकल्स, छोटी 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 चीज़ें जो उस चैप्टर से लिंक कर रही थी, हमने पहले वो सिखाई. फिर हमने चैप्टर पढ़ाया. चैप्टर पढ़ाने के बाद अब हमने उनसे कहा कि जनाब
critical खुद से सोचिए. We are not going to write the answer on the board. You have read the chapter, we have discussed the glossary, we have discussed the sentence structure, and now you should come up with your own answer. आप उसने आंसर बना लिया. अब 2-3 छोटे-छोटे आंसर्स को मिलाइए, पैराग्राफ बन गया. पैराग्राफ बनाने का भी असूल है PIE, एंड और इसके साथ साथ हमने उसमें लिंकिंग वर्ड्स भी बच्चों को सिखा दिए. तो लिंकिंग वर्ड के थ्रू आपका पैराग्राफ ब्रश अप हो गया और वो खूबसूरत लगने लगा. तो वी हैव चेंज द होल सिनेरियो. हमने इंग्लिश पढ़ाई लेकिन दूसरी तरफ से, indirect way. This is called the indirect way of teaching a new language. So what we are doing, we are not opening a book and telling them this is what we are going to read today. We are opening the grammar part first. We are teaching one single word bit by bit और उसको लिंक किया अपने टेक्स्ट के साथ. अब उसने इनडायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ लिया. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रेड 6 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वॉन्ट टू टीच देम कंपाउंड वर्ड्स. मैंने उनसे कहा कि कंपाउंड्स वर्ड्स मैंने समझा दिए और मैंने उनसे कहा ओपन अप योर बुक, ओपन अप योर लेसन और ये 3-4 कंपाउंड वर्ड्स अपने टेक्स्ट में से ढूंढिए. दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग. स्कैनिंग वो होती है जब आप सिर्फ अपने पर्टिकुलर वर्ड को स्कैन करते हैं, पूरा टेक्स्ट थोरली नहीं पढ़ते. मैंने 3-4 कंपाउंड वर्ड्स बोर्ड पे लिख दिए और कहा फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए और उसमें से इन वर्ड्स को स्कैन कीजिए. जब वो स्कैन करेंगे तो वो अपने वर्ड्स जल्दी जल्दी स्पीड रीडिंग के साथ करने के बाद अपना पर्टिकुलर जो कंपाउंड वर्ड है वो निकाल के, या कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन, वो निकाल के साइड पे रख लेंगे. अब मैंने 2 काम किए. मैंने उसको इनडायरेक्टली टेक्स्ट भी पढ़ा दिया, उसको कुछ ना कुछ नो हाउ तो हो जाएगा कि ये टेक्स्ट किस बारे में है, और उसने स्कैनिंग के थ्रू अपने पर्टिकुलर वर्ड भी निकाल लिया. तो आई हैव टॉट हिम द ग्रामर and I have given him an indirect exposure to the text. क्योंकि text sometimes learners find it very boring. Yeah, so this is the indirect way of doing it. So what we have came up, the philosophy of teaching the grammar, we have 2 things in our mind: teaching the grammar and indirect knowledge of the text, the first hand knowledge. आप अगर vocabulary में 3 SLOs को एड्रेस किया गया तो 3 एक्टिविटीज होंगी. तो हर एक्टिविटीज को हमने वाइजली इस तरह डिजाइन किया है कि हर एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना है. अभी आपने क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन उसने खुद से वो अल्फाज वहां से ढूंढने हैं या जो भी उसने काम करना है. ठीक है, तो अभी एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ने से पहले उसने ग्रामर की एक्टिविटी के थ्रू 3 times और एटलीस्ट 4 times डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज यू हैव गिवन इन द वोकैबुलरी पार्ट, उसने अपने टेक्स्ट को स्कैन कर लिया. ठीक है, रीडिंग हैज बीन डन विद द 3 types ऑफ रीडिंग: स्कैनिंग, स्किमिंग एंड रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग. तो अभी हम सिर्फ स्कैनिंग के थ्रू उसको वही वर्ड्स पीछे से ढूंढ के निकलवाएंगे जो वर्ड हमने एक्टिविटी में दिए हुए हैं. सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट. या ओके, हमने वर्टिकल लिंकेज पे पहले बात कर ली है अपने ऑफिशियल ग्रिड में कि वी आर टीचिंग देम प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द लर्नर. 1 में उसकी माइंड की जितनी कैपेबिलिटी थी उतनी हमने सिखाया, फिर 2 में वैसा सिखाया, फिर 3 में वैसा सिखाया. और दिस हैज़ बीन वेरी वाइजली डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. नेशनल करिकुलम में ऐसा ही मौजूद है और इसी फिलोसफी को हमने आगे बढ़ाते हुए अपनी बुक्स को डिज़ाइन किया है. ठीक है, तो ओके, अपने अपने लेक्चर को सिर्फ बुक के साथ कन्फाइंड मत कीजिए. टेल योर लर्नर दैट द नॉलेज इज आउट इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड विद द बुक. अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अपनी चीज़ों को रिलेट करेंगे, द लर्नर इज गोइंग टू बी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, सॉरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से. Sorry for the difficult part. Yeah. So, अगर आप बस for example, if you are teaching them compound words, ask them to join 2 words you find in your classroom and make a compound word. Yeah. Or if you are talking about collective noun, तो आप उनसे कहें classroom में find out collective noun. तो वो real life से examples यहाँ घर जाइए, whatever collective noun you find your way to your home, make a separate list of it. ठीक है, तो always tell them that knowledge is not only in the book, it is out there in the world. आप उसको इंटरनेट भी बता सकते हैं, कोई वेबसाइट्स अगर आप मुनासिब समझते हैं तो एजुकेशनल के इन वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए एंड गो एंड लुक फॉर सर्टन things which you are looking for. Instead of telling them this is the book only, अपनी बुक से भी आगे जाइए, think out of the box and let your child. All right, Irfanul Haq, Barikot Public School. Sawat, oh welcome dear. Is this our first interaction? I welcome you.
Thank you so much. Okay, so this is what we do in Canton. Okay, we are progressively increasing the knowledge of our child according to the mind of the child. Could you please tell me what is the attention span of a teenager? 6 में तो हमारे पास teenager आ जाएंगे, 11-12 साल के हो गए, या 11-12 साल के learner को हम teenager कह सकते हैं? बताइए जरा. Anyone? Come on. Please tell me the attention span of, 3. So we can call our middle school student a teenager. And what is the attention span of a teenager? What do you mean by the attention span? Attention span के 1 घंटे में कितने मिनट्स में वो आपकी बात सुनेगा और बाकी आपके उसके ऊपर से उड़ जाएंगे? Yeah? The attention span of a 7 or 8 years old is 2.5 minutes and it increases by 1 minute each year. Yeah? और यहाँ तक आते आते इसका attention span hardly 10 minutes होता है. तो in a 1 hour hardly वो आपका 10 minutes सुनेगा and the attention span is decreasing of this generation. Would you please like to incorporate why it is happening? Why the attention span of this generation is decreasing? Anyone? Come on, let it be interactive. I just want to know what is the attention span. नहीं, मेरा सवाल था कि इस generation का attention span क्यों कम होता जा रहा है? Why? Because of the reels they are watching. Due to the continuous scrolling on the internet and the reels they are watching, उनका जो short term memory है वो full हो जाती है बहुत जल्द. लेकिन चूंकि डोपामाइन इतना रिलीज होता रहता है, they get stick to the screen. and अगर आप एक टीनेजर से मोबाइल जब वो बहुत ज़्यादा उसका डोपामाइन इंक्रीज हो रहा होता है आप लें तो he gets aggravated just because of the drop of the dopamine. वो नहीं चाहता. तो हमारे यहाँ, yeah, absolutely right. Due to the reels, अच्छा जब नया नया मोबाइल आया था 10 years ago I believe or maybe 12 years, तब ये shorts नहीं थे. They are intentionally incorporated in the third world countries. आपको पता है जितनी advanced countries हैं उन्होंने बच्चों के मोबाइल के यूसेज पे बैन कर दिया है. I've recently been taught कि जापान में there is a ban for a child to use internet or to watch continuous videos. There is a total ban on it. Or Denmark में there is a rule that a child is not allowed to use internet for more than 2 hours in a week. In a week. Imagine हमारा child कितना addict है और वहाँ पर अगर वो 2 hours से ज़्यादा per a week अगर नेट यूज़ करता है तो उसके पेरेंट्स को उसका बिल आता है. तो दे आर सो एडवांस्ड एंड दे आर सो अवेयर एंड ahead of time कि उनको समझ आ गई है कि दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द माइंड, not only for a teenager, even for an adult as well. Do you find it very difficult when you cling to some sort of shorts? क्या उसको छोड़ना आसान होता है? नहीं, छोड़ना शॉर्ट्स को बहुत मुश्किल होता है. तो आप भी अपनी ये रूटीन बनाइए कि डोंट वॉच शॉर्ट्स, वॉच अ फुल वीडियो. उसकी स्पीड इंक्रीज मत करें बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन. बिल्कुल अवॉइड करें शॉर्ट वीडियोस को देखना. At any age, they are causing very harmful effects on your brain. Yeah. That's thank you so much for telling us. Azmatullah ने हमसे कहा कि Australia has banned social media in the last week for under 17. या VPN वो यूज़ कर लेंगे लेकिन आप उनको उनके जो नुकसानात है उसके बारे में बाखबर रखिए. उनको बताएं कि this is destroying. You are not going to be able to think properly. आप zoom out हो जाया करेंगे. अगर आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे आप उनको ये सारी बातें बताएं. आप सर्च कर सकते हैं. अगर आप लोग कहेंगे I'm going to have a separate session कि how to stop the indulgence of a teenager from the internet or social media. ठीक है, इसमें हम वेज को डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे उनको उसकी,
जो नुकसानात है उसके बारे में बात करेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो होपफुली विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स हम जो है उसको कम कर सकें। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का भी हाथ है। आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन इन देयर स्ट्रॉलर हैविंग देयर मोबाइल इन देयर हैंड, तो वो मोबाइल उसकी पेरेंट ने उसको दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पहले समझिए, आप समझेंगे तो आप जो है ये एक कड़ी से कड़ी चलेगी और ये बात जो है वो आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हमने बच्चों को मोबाइल दिया है, छोटे बच्चों को, बड़ों को तो आदत हमने डाली है, ठीक है, वरना ये आदत ना होती। देखिए बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम अटेंशन स्पैन पे दोबारा आएंगे। 8.5 है। या 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 ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग। So this is yet another competency regarding to C. मुझे कौन बताएगा कि C किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी कॉम्पिटेंसी को? Anyone? I'm not going to dive deeper into the SLOs. मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए C कॉम्पिटेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? इरफानुल हक साहब। Anyone? Come on. C denotes the competency of vocabulary and grammar, और इसी कॉम्पिटेंसी को, यस थैंक यू सो मच कशिफ खान, सी कॉम्पिटेंसी को हम पहले एड्रेस इसलिए करेंगे बिकॉज थ्रू द ग्रामर वी आर टीचिंग आवर लर्नर्स द वर्ड बिल्डिंग। या ओके, दिस इज अ ग्लिम्प्स ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ एनी बुक। आप कैंटअप की कोई भी इंग्लिश की बुक देख लीजिए, हमने पेन्स टेकिंगली वेरी वाइजली अपनी बुक को इस तरह डिज़ाइन किया है। कॉम्पिटेंसीज इस ऑर्डर में आती हैं, पहले ऑरल आता है, फिर रीडिंग, वोकेबलरी एंड राइटिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द रिसर्च हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वी शुड टीच वोकेबलरी फर्स्ट, देन रीडिंग, देन ऑरल एंड देन राइटिंग। हमारी बुक्स भी इसी तरह जो है वो डिज़ाइन की गई हैं। एवरी first page of a chapter has a QR code which is a zero lesson, जिसमें लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है और बताया जाता है कि कौन से एसएलओज को हम किस तरह इसमें एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी बुक आप उठा लें, सबसे पहले वोकेबलरी एंड ग्रामर को जो है वो फोकस किया जाता है, नंबर 1, देन वी टेक केयर of the reading competency, then the oral competency and then the writing competency। और हर SLO से पहले QR कोड मौजूद है, उस पर एक सेपरेट लेसन है। उस लेसन QR कोड को जब आप क्लिक करेंगे you will go to a link। If I believe you're not able to do it now, but I'm going to show it in further slides कि जब आप QR कोड को स्कैन करते हैं you will be able to have a link। लिंक पर जो आप क्लिक करेंगे you will have a video, and right under the video into the descriptions there are lots of things. There are lesson plans, there are PPTs for the lesson, there are worksheets, and lots of things to help you out for the teacher। So in grade 1 I've told you, I've discussed it कि हमने grade 1 में naming grade को discuss नहीं किया, noun को discuss नहीं किया, बल्कि उसका easy word use किया है, that is the नेमिंग वर्ड। और उसकी पेन्सटेकिंगली हमने इस तरह वेबसाइट, हमारी वर्कशीट्स बनी हुई हैं, हर वर्कशीट के साथ एक QR कोड मौजूद है कि आपने उस लेसन को कैसे पढ़ाना है। टीचर भी देख सकता है क्लास में जाने से पहले, और अगर आप डायरेक्टली अपनी क्लास में इसको लगाना चाहते हैं, दिस इज स्टूडेंट फ्रेंडली एज वेल। या तो इसी तरह ग्रेड 2 में हमने नेमिंग वर्ड को किस तरह एड्रेस किया है, सिंगुलर प्लूरल के साथ, ठीक है। हमने वेब्स अपने जो है वो एक्सरसाइजेस बनाई हुई हैं, और येट अगेन हमने यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी साथ दिए हुए हैं, और हमने टीचर गाइडलाइन भी दी हुई है। और एवरी SLO वी हैव a QR code which is accessible, easy to use, understandable and language friendly। बाइलिंगुअल बात हुई है, लैंग्वेज में बात हुई है। इट इज़ वेरी इजी फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कि आप इस वीडियो को प्ले कीजिए और उसको सुनिए। या एंड येट अगेन ग्रेड 3 हमने जो कहानी शुरू की थी नेमिंग वर्ड की, ग्रेड 3 में आके हम उसको जो है जनाब नाम दे देते हैं। QR कोड माय डियर मौजूद है ग्रेड 8 की बुक में, अगर नहीं है तो बहुत जल्द लग जाएंगे, मैं बात करूँगी। लेकिन उसके जो रेलिवेंट वीडियोस हैं वो हमारी वेबसाइट 360 पे पड़ी हुई हैं, चेस अकेडमी पे भी मौजूद है, कैंटर पब्लिशर्स पे भी मौजूद है, ठीक है। ग्रेड 3 में आगे हम नेमिंग वर्ड को रिप्लेस कर देंगे नाउन्स के साथ, और यहाँ से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हम नाउन के बारे में, और प्रपोज्ड होमवर्क, इमेजिन
Imagine the facility we have provided to the teacher. अगर आप काम करवा चुकी हैं और if you have no idea what to give the homework, we have mentioned the homework on the book as well. How feasible is that? Imagine. Yeah? और yet again आप देख सकते हैं कि उसके साथ QR code का लिंक है और वेबसाइट भी मेंशन है. These are yet again grade friendly, student friendly, accessible. आप जाके इसको देखिए. They are free to watch and related to the topic as well. ग्रेड 4 में भी हम यही काम करेंगे. ठीक है, हर चीज़ को हमने अंडरस्टैंडेबली कैटर किया है. QR कोड मौजूद है, वर्कशीट्स मौजूद है, एक्टिविटीज़ मौजूद है. ग्रेड 5 में भी यही काम हुआ है एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ग्रामर पे बात होगी, फिर हम जो है उस पे जाएंगे. अच्छा, इस स्लाइड का पर्पस ये है कि हम जब यहाँ से इसको स्कैन करेंगे तो व्हेन वी स्कैन इट हमारे पास जो है वो एक वीडियो आ जाएगी और उस वीडियो में जो है वी हैव ऑल ऑफ द लिंक्स इन अंडर द डिस्क्रिप्शन which are the helping aid and the resource material for the teacher to use it. अच्छा, उसमें लेसन प्लान भी मौजूद है. हमने लेसन प्लान बहुत वाइजली डिज़ाइन किए हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड लेवल. ठीक है, अब आप देखें टाइम एलोकेशन 40 to 45 मिनट्स है और हमने इसको किस तरह डिवाइड किया है. अगर हमने रीडिंग करवानी है तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. For the exercise we have done this and for the warm up activity we have done that, and with every lesson plan we have given yes, but we are working on it, Irfanul Haq Sahab. We are working on it on the videos for the senior grades. हमारी आजकल videos record हो रही हैं and you will be having access to them very shortly, inshallah. Don't you worry about it. ठीक है, और चूंकि अगर वीडियोस नहीं भी हैं तो that's why we have designed these CPD sessions for you guys to understand the philosophy and understand the methodology. क्योंकि अगर वीडियोस नहीं भी हैं तो हम यहाँ पर इसलिए आते हैं गाहे बगाहे टाइम टू टाइम ताकि आपको बताया जाए कि बुक को किस तरह पढ़ाना है. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार इन योर माइंड? Any question? Yes. If you have no question, shall I proceed further? If you want me to proceed further and do not ask you a question, give me a thumbs up. Yeah? You don't want me to ask you anything? Come on. Let it be an interactive session. All right. So this is how we are dealing with the competency of reading and critical thinking. अगर आप reading और critical thinking भी किसी भी level पे करवाना चाहते हैं, yet again you go to the QR code or there are teachers guideline right under the page. उस टीचर गाइडलाइन में टीचर फ्रेंडली लैंग्वेज में पूरी डिटेल आपको बता दी गई है. ग्लॉसरी मौजूद है, मैथडोलॉजी मौजूद है. अगर वीडियोस नहीं भी अवेलेबल है तो टीचर गाइडलाइन अवेलेबल है. कोई सेपरेट हमने टीचर गाइडलाइन नहीं बनाई. बुक पे टीचर गाइडलाइंस मौजूद हैं. दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर टू इनकॉर्पोरेट इन देयर डेली लेसन प्लान्स एंड कैरी आउट द टास्क very efficiently. Thank you, sir. So this is how we have to do it. अच्छा, हमने वर्कशीट्स भी बनाई हैं. जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे रिसोर्स मटेरियल में you will have an access to the worksheets as well. ना सिर्फ लेसन प्लान मिलेगा, ना सिर्फ लेसन की PPT मिलेगी, बल्कि वर्कशीट्स भी मिलेंगी. और ये देखिए लेक्चर 5 की वर्कशीट है. This is how we have made it according to the grade level और ये एडिटेबल है. जी, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सेपरेट सेशन होगा जिसपे अटेंशन स्पैन ऑफ वेरियस एजेस पे हम डिस्कस करेंगे एंड व्हाई इट इज डिक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट. क्योंकि एक ऐसा ये एक पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है. किस एज का कितना अटेंशन स्पैन है, कितना होना चाहिए, और उसके हिसाब से इमेजिन हमने अटेंशन स्पैन के हिसाब से ही अपना लेसन प्लान जो है वो डिज़ाइन किया है. अगर आप कंटिन्यूसली बोल लेंगे, टीचर सिर्फ बोलता रहेगा तो लर्नर इज़ गोइंग टू फाइंड इट वेरी बोरिंग. आप बता सकते हैं कितने % जो है वो लर्नर लेक्चर्स को सुन के समझते हैं? कितने % आउट ऑफ 100? कम ऑन. ओनली 10% लेक्चर्स को सुन के समझते हैं. 100% बच्चे सिखा के समझते हैं. That's why I would suggest you to make your learner
सिट इन ग्रुप ऑफ 4, जिसमें एक काइनेस्थेटिक हो, जिसमें एक आपका विजुअल हो, जिसमें एक आपका इंटेलिजेंट इस हिसाब से हो कि वो एक्टिव हो और उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो। 4 के ग्रुप्स में बच्चों को बिठाइए, जो बच्चे आपस में एक दूसरे से समझेंगे वो टीचर की नहीं समझेंगे, ठीक है? तो बजाय हर चीज़ क्लास में जाके एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, आस्क देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, आस्क देम, ठीक है? मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि मैं कम से कम बोलूँ और आपसे इंटरैक्ट करूँ, लेकिन हम क्या करें, हम ग्रो ही इस तरह हुए हैं कि हम सिर्फ सुनने के आदी हैं, हम बताने के आदी नहीं हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ। आपने क्लास में बताना नहीं है, आपने क्लास में जाके पूछना है। आज आप ये ना बताइए कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ चैप्टर रिगार्डिंग टू द सहाबास। टेल देम, आस्क देम, read the title, tell me what are we going to read today, what do you mean by sahaba, what is happening, what do you mean by badr, इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन, यानी कि instead of telling them, ask them, because अगर हम उनसे ask करेंगे that is going to create ignite the curiosity in them, और वो उस पर सोचेंगे। और कुरान का मिजाज भी यही है कि आपको सोचने पे मजबूर करता है। जब आप सोचेंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप सुनेंगे तो फिर आप सो जाएंगे, जैसे मेजॉरिटी ऑफ यू आर, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग, आस्क देम रिपीटेडली, ताकि वो जागते रहें, ठीक है? तो हमने वर्कशीट्स भी बनाई हुई हैं जनाब आपकी ईज के लिए। एंड एनीवन, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज दिस कॉम्पिटेंसी? बी कॉम्पिटेंसी कौन सी वाली है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? एनीवन? बी कॉम्पिटेंसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कम ऑन, बी कॉम्पिटेंसी रिप्रेजेंट करती है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है? आपने सबसे पहले क्लास में जाना है, बल्कि you don't have to do anything, you just have to follow the instructions made by the Cantor publishers and everything is there on the net. आपको पता होगा, आपने पहले ग्रामर करवा दी। नाउ यू आर एट द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट, जिसमें ऐसे एसएलओस हैं जो टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए हमने टेक्स्ट रखा है, ठीक है? या तो वो प्रोज होगा या पोइट्री होगी, और उन टेक्स्ट के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, लेट्स डिस्कस, आप टेक्स्ट कैसे पढ़ाते हैं क्लास में? टेक्स्ट को आप, अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि टेक्स्ट जो है हमारा एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। ना हो, आप उसको डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में, ठीक है? और ऑलरेडी हमने अपनी बुक्स में ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है? आप हाफ टेक्स्ट पढ़ाइए, बल्कि खुद से ना पढ़ाइए, आप क्लास में जाइए, उनसे कहें रीड द टाइटल, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ग्रेड 6, 7 एंड 8। एट दिस स्टेज दे आर एबल टू रीड द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंड the theme, the purpose, the main idea। आप उनसे कहें कि read the title and tell me what this text is about, इसका थीम क्या है, इसका पर्पस क्या है। ये इस तरह से हो जाएंगी हमारी प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है? और साथ में बच्चों को बताइए कि इसका जॉनरा क्या है, क्योंकि एट दिस स्टेज वी कैन डिस्कस द जॉनरा ऑफ द टेक्स्ट विद द चाइल्ड अलोंग विद, इतना तो पता ही होगा कि प्रोज एंड पोइट्री है, तो फिर आप जॉनरा डिस्कस कीजिए कि अगर प्रोज है तो कौन सा जॉनरा है, ठीक है? और फिर बच्चों को ग्रुप में बिठा दीजिए, इसको कहते हैं जिक्सा रीडिंग। सारे बच्चे एक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आप हर ग्रुप को एक एक पैसेज दे दीजिए, और बस हर ग्रुप को एक एक डिक्शनरी दे दीजिए, ठीक है? इसको कहते हैं जिक्सा रीडिंग, और बोर्ड पे लिख दीजिए। अब मुझे एक प्लेन दीजिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं, आप अपना बोर्ड तैयार कीजिए। दिस इज ओनली फॉर द ग्रेड 6, 7 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 4 ग्रुप्स इन द क्लास। ग्रुप ए बनाइए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग। अपने टेक्स्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? और बच्चों से कहिए कि आपने इस लाइन से इस लाइन तक पढ़ना है, ठीक है? आप फर्ज कर लें कि आप कहते हैं कि आपने 10 लाइंस आपने पढ़नी है, 11 लाइन से 30 आपने पढ़नी है। आप लाइंस डिवाइड कर दें या पैराग्राफ्स डिवाइड कर दें। आप कह दें 31 से 50 तक आपने पढ़ना है,
और 51 से 70 तक आपने लाइंस पढ़नी है, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम मेंशन कर दें, मसलन अली पढ़ेगा, पाशा पढ़ेगा, हमजा पढ़ेगा, ठीक है। मैं यूजुअली बॉयज़ को पढ़ाती रही हूँ तो मेरे जहन में लड़कों के नाम नहीं आते, ठीक है। तो आप जो है वो उनसे कह दें कि ये वाले बच्चे इस ग्रुप में हैं, ठीक है। कोशिश करें फ्रेंड्स ही आपस में बैठ के पढ़ लें, इससे उनको लुत्फ दोबाला हो जाता है। और उस ग्रुप में एक डिक्शनरी ज़रूर दीजिए ताकि वो अपना टेक्स्ट भी खुद ही पढ़ें। एक बच्चे को कहें कि आपने डिक्शनरी में से टिपिकल वर्ड भी खुद ही ढूंढने हैं और अलहदा रजिस्टर पे आपने उसके मीनिंग्स भी लिखने हैं और एक उसमें से प्रेजेंटर बना दें। मसलन आपने ये 4 नाम लिखे, एक को आप कह दें कि आप रीडर हो, आप नंबर 1 स्टूडेंट जो है वो रीडर है, वो पढ़ेगा। नंबर 2 स्टूडेंट जो है वो डिक्शनरी से उसका वर्ड ढूंढेगा। नंबर 3 जो है वो रजिस्टर पे उसका मीनिंग लिखेगा और नंबर 4 जो है वो जो वोकल होगा उसको आप प्रेजेंटर बना दें। आप इस तरह ग्रुप डिज़ाइन करें, इस तरह के बच्चे बिठाएं। मसलन हर ग्रुप में आप ड्यूटीज असाइन करते हैं। ग्रुप सी में भी आपने नंबर भी बता दिए, ड्यूटीज असाइन कर दें नाम के साथ। ग्रुप बी में भी आप नंबर बता दें, इतनी लाइंस आपने पढ़नी है, ड्यूटी असाइन कर दें। इस तरह क्या होगा कि उतने ही टाइम में बच्चे जो हैं वो सारा टेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म हो गया टाइम, सबने पढ़ लिया। अब आप उनसे कहें कि आप बारी बारी आएँ और प्रेजेंट करें, बताएं कि इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। और प्रेजेंटर रोटेट करें, हमेशा वही प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन ना दे। उसको पिछले वीक आपने प्रेजेंटेशन दी थी, अब आप आ जाएं, अब आपकी टर्न है। वो टूटी बोले इंग्लिश, फूटी बोले, इसको इंटरप्ट ना कीजिए। नो शेम जोन बनाइए। अगर वो बोल रहा है, अगर आपने उस वक्त उसको टोक दिया तो उसका फ्लो टूट जाएगा। जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाए फिर जो जनरल मिस्टेक्स आप नोट डाउन कर रही हैं, अब तो सबसे पहले बताएं कम ऑन स्टैंड अप टॉल, स्माइल एंड टॉक अबाउट। डजेंट मैटर इफ़ यू फ्लक्चुएट और फ्लफर, और अगर आपने पॉज भी कर लिया, कुछ नहीं, आप बोलिए। इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, उर्दू में नहीं। या वी आर टीचिंग देम इंग्लिश। तो दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग। आप 35-45 मिनट्स के पीरियड में बच्चों ने पढ़ भी लिया खुद से ही, उन्होंने ग्लॉसरी भी खुद ही बना ली अपनी, ठीक है। और उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दे दी। प्रेजेंटेशन ज़्यादा लंबी ना हो। बच्चे क्या करते हैं, वही लाइंस पैराग्राफ की लिख के ले आते हैं और वो आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनसे कहें नहीं, आपने स्किम करना है टेक्स्ट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने आज इसमें पढ़े हैं उसको ओनली 2 लाइंस में बयान कर दें, वो भी इंग्लिश में आके। मुझे ज़्यादा तफसील नहीं चाहिए, उनसे यही कहें, ठीक है। तो ग्रेजुअली, हाँ, बुलाना आपने ग्रेजुअली है, लाइन वाइज। मसलन फर्स्ट ग्रुप लाइंस के बाद जो सी लाइंस आ रही हैं उस ग्रुप वाले को बुलाएं ताकि जो फ्लो है स्टोरी का वो बरकरार रहे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग। और इसको करने के बाद जिस ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपकी रीडिंग हो उसी दिन ही क्वेश्चन आंसर्स हो, उसे नेक्स्ट डे पे ले जाएं, ठीक है। और डू नॉट राइट द आंसर्स ऑन द बोर्ड, या आस्क देम टू राइट द आंसर्स ऑन देयर ओन। उनको बताइए कि आपने क्वेश्चन जो पढ़ा है वो जिस टेंस में पढ़ा है आपने उसी टेंस में जवाब देना है और अपने अल्फाज में देना है, और उसको सवाल दे के खुला ना छोड़ दें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन उसको दिया है आपने उसकी पहले टाइप बताएं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये फैक्चुअल है, क्या ये फ्रेंचुअल है, क्या ये ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने ओपिनियन देना है तो आपने हर क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। आप पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसकी टाइप डिस्कस करेंगे और फिर उससे रेलिवेंट वोकैबुलरी जो है वो बोर्ड पे लिखते हैं, एडजेक्टिव्स लिखते हैं, और फिर वन आफ्टर द अदर आस्क देम टू यूज दिस एडजेक्टिव्स एंड मेक ए सेंटेंस। आई नो वो ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे, लेट देम डू इट। लेकिन जब तक आप पेन्स टेकिंगली क्वेश्चन आंसर्स उनसे नहीं कराएंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। बोर्ड पे क्वेश्चंस ना लिखें। आई नो कि क्रिटिकल रीडिंग वाला पार्ट आपको शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप ग्रेड 6 में हैं तो बच्चे जो हैं वो पीछे से ये काम नहीं अगर करके आए हैं तो उनको तो बहुत मुश्किल लगेगा कि हमें जवाब खुद लिखना है। वो ढूंढ तो लेंगे अपने, उन्होंने उनको समझ तो आ जाएगी कि ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसका आंसर ये है, लेकिन जब वो उसको अपने अल्फाज में ढालेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे। अच्छा, उनको वर्बली ऑरली पहले आंसर बताने दें, ठीक है। अगर वो ऑरली आपको आंसर बता रहे हैं तो रॉन्ग है, उसको वहीं ऑरली ठीक कर दीजिए और उस स्टूडेंट से कहिए कि बोर्ड पे आए और इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेटर गुजरेगी तो वो बच्चे को लिखता हुआ देखेगी, आपको नहीं, ठीक है। तो आप बच सकते हैं। तो
ओरली जो है आप क्वेश्चंस को करेक्ट करके आंसर्स उसी वक्त बच्चे से बोर्ड पे लिखवा लें. प्लीज टेल अगेन अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. जी हम डिस्कस करते हैं अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को. हम ग्रेड 6 की बात कर रहे हैं. हमारा चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फुली केपेबल है, अंडरस्टैंडिंग से आगे है, कॉम्प्रिहेंशन से आगे है. अब वो क्रिएटिविटी की स्टेज पे है, वो अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना सकता है. मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको डिस्कस करूंगी. ये प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज ये सारी हमने कर ली. अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़, बच्चों से एक वोकैबुलरी बुक बनवाइए. छोटे बच्चों की क्लास में कल क्लास 1 till 5 आप एक वर्ल्ड वॉल बना सकते हैं जो नया वर्ड सीखे. कोई भी स्टूडेंट जाके उस पर वो नया वर्ड लिख दे, साथ मीनिंग लिख दे, इसको वर्ड वॉल कहते हैं. लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो क्लासेस में ऐसी रंग बरंग चार्ट्स नहीं लगते, तो आप उनसे एक वोकैबुलरी बुक बनाइए. वट एवर यू लर्न ऑन अ डेली बेसिस, कोई नया वर्ड, कोई नया फ्रेज जो भी आप सीखते हैं उस पर लिखिए. और हफ्ते बाद आप क्लास में उसकी एक एक्सरसाइज रखिए. बच्चों से कहें कि आपने क्या सीखा ओवर द वीक, प्लीज डू कम एंड टेल अस. ठीक है, उसके क्लैपिंग करवा दें, कैंडी दे दें, कुछ भी कर दें, अप्रिशिएट करें. या तो ये काम भी किया जा सकता है. प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी वी हैव. यस, आपने बात की कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, बट लिटरल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. इन्फ्रेंशियल है, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस हैं. वी आर डीलिंग विद ग्रेड 6 and 8, तो हमारा लर्नर नाउ आर फुली केपेबल to address this sort of questions, जिसमें वो why reason बता सकते हैं, क्यों की रीजन बता सकते हैं. what is the character feeling here, वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके उसकी रूट कोर्स को अब बयान करने के काबिल हैं. ठीक है, तो हम इस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस यूज करेंगे जिसमें हम तज्जिया कर सकते हैं. एनालिटिकल क्वेश्चंस को इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस कह सकते हैं, इन विच you have to read between the lines. The answer is not given, you just have to comprehend. आपने समझना है कि अगर ऐसा है तो उसकी बैक पे क्या कोर्स चल रही है. ठीक है, और evaluative and critical thinking, again our learner from grade 6 to 8 is fully capable right now according to the Bloom's taxonomy, and he is able to give his opinion. For example, do you agree with the author's opinion? वो अपना opinion दे के हाँ भाई मुझे ये बात अच्छी लगी because of this. Yeah, सिर्फ बात अच्छी लगी तक ना रहे. Why I like it, why I not like it, to give the opinion and the reason behind it, and how would the story change if it were set in Pakistan. Yeah, इसके लिए उसके पास vocabulary words होने चाहिए, उसके पास prompts होने चाहिए. ये ऐसे questions हैं इस level पे पाकिस्तानी students के लिए अभी solve करना मुश्किल है. तो a teacher should write the question on the board and give the relevant adjectives. फिर बच्चों से बारी बारी कहें खड़ा कर करके कि इन adjectives को यूज करते हुए sentences बनाएं. वो यकीनन grammatical mistake करेंगे. Let them be there and then correct the sentence. जब sentence correct हो जाए उनमें से एक बच्चे को उठाइए. I write the correct answer on the board. जब वो लिख ले फिर आप अपने learners को allow कीजिए कि now write the answer, क्योंकि अब उन्होंने खुद ही आंसर निकाला, आपने तो नहीं निकाला, आपने तो सिर्फ हेल्प किया. और बच्चे ने भी लिखा, आपने नहीं लिखा. अगर कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं तो दिस इज द न्यू स्ट्रैटेजी. या और एवेल्युएट में इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं. हाउ वुड द स्टोरी, या एंड व्हाट अदर स्टोरीज हैव यू हैव रेड व्हिच आर सिमिलर और डिफरेंट. एनी अदर क्वेश्चन इन योर माइंड सो फार? अच्छा जी, इस लेवल पे हमारा लर्नर जो है वो फ्लुएंट भी है और क्रिटिकली रीड करता है. ठीक है, क्रिटिकली आंसर पूछता है कि इफ इट इज हैपनिंग व्हाई इट इज हैपनिंग. अव्वल तो रीजन उसको खुद ही पता होता है. ठीक है, वी आर डीलिंग विद एन एरा of a child of a very new era. He knows what is happening behind the scene, what is happening under the table. We don't have to tell them. They know if it is happening, why it is happening. So मसला ये है, इनको पता है क्या हो रहा है लेकिन उनको लिखना नहीं आता है. लिखने में उनकी हेल्प कीजिए, उनको प्रॉम्प्ट्स दीजिए. व्हाट आर प्रॉम्प्ट्स बाय द वे? क्या होते हैं प्रॉम्प्ट्स? एनीवन? व्हाट आर प्रॉम्प्ट्स? हिंटिंग वर्ड्स. यस, नॉट क्वेश्चन, स्टार्टर्स. ठीक है, क्या बच्चे अक्सर पूछते हैं कि टीचर मुझे समझ तो आ गया मैंने क्या लिखना है, पर मैंने स्टार्ट कैसे करना है.
आइडियाज या तो वो एक्चुअल अल्फाज जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो 3-4 ऑप्शंस आप बोर्ड पे लिख दीजिए, ठीक है। उनसे कि आप इसमें से एक को चूज करें और अपने जवाब का आगाज कीजिए। जब उनको स्टार्टर्स मिल जाता है और साथ में एडजेक्टिव्स लिखे होते हैं बोर्ड पे तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है उस पर काम करना, ठीक है। तो डू दैट। तो इस लेवल पे आवर चाइल्ड इज क्रिटिकल थिंक इज एबल टू टेक्स्ट एनालाइज, आर्ग्यूमेंट की एवेल्युएशन कैसे करनी है, टेक्स्ट टू वर्ड सेल्फ टेक्स्ट कनेक्शन, अपने टेक्स्ट को कैसे कनेक्ट करना है विद द फर्दर। I am short of time. I just want you to address whatever there is there in your mind, anything regarding to the grade 6 and 8 reading methodology, because we are specifically targeting this area. Anyone? This is yet again a page from the, what should I say, curriculum, ठीक है, जिसमें हमें वो बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ वी हैव टू डू इट। मैं इसकी अब डेप्थ में नहीं जाऊंगी। दिस इज़ द ब्लूम टेक्सोनॉमी, एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड अब हमारा स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करने के काबिल है, इस स्टेज से वो गुजर आया है, इस स्टेज पे अब वो नहीं है। he is able to execute, implement, he is able to differentiate and organize, relate. All of these are action words। और हमारी एक और जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंडली डीप डाइव किया है इन सारे एक्शन वर्ड्स पे। हर एक्शन वर्ड्स को हमने एक्सप्लेन किया है इन उर्दू एंड इंग्लिश, और बताया है कि इंग्लिश में हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अदर लैंग्वेजेस में, विच आई बिलीव ओनली इज उर्दू। तो किस तरह हम इनको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ साइंस से रेलिवेंट हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वी हैव अ सेपरेट सेशन ऑन इट। So you can go and watch it on the YouTube of our channel. But yet again, our child is now in middle school and he has grown up, his intelligence has increased। तो हम critical thinking वाले questions अब उससे पूछ सकते हैं and he is able to do it। लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम लैंग्वेज में इसलिए भी आती है क्योंकि उनको अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। हमारा डिलेमा यही है कि हमने बच्चों को जो है वो भी लिखना ही नहीं सिखाया, हमने सिर्फ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए, बच्चे ने रट्टा लगाया और पास हो गया। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन देयर इज 60% ऑफ रिमेंबरिंग, 30% ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड 10% ऑफ एप्लीकेशन। 9 to 10th एग्जामिनेशन व्हिच हैज टू बी चेंज्ड। आई बिलीव एवरी पेपर हैज टू बी अनसीन। स्किल्स पे फोकस किया जाए इंस्टेड कि आप समरी को रट्टा लगाएं और ये 3-4 ऐसे याद कर लें और 2-4 लेटर्स याद कर लें और आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अनसीन ग्रामर के क्वेश्चंस आने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस आने चाहिए और समरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है। और बहुत जल्द हमारा पंजाब बोर्ड भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो केपी के बोर्ड और एचए के बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑलरेडी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत आगे निकल चुका है। पंजाब बोर्ड अभी पीछे है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी काम होगा और वहाँ पर भी जो है वो ओ लेवल्स की बेस पे या एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ओ लेवल्स ऑलरेडी एसएलओ बेस्ड है। तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट। एनी question or ambiguity in your mind so far regarding to the curriculum, how we have designed it, how we have incorporated it in the Cantor books, and the teaching methodology regarding to the primary. Sorry, I'm flumping right now. It's been 2 hours. So please ask me something relevant. Yes, please. I'm waiting. अच्छा, अभी तक हुमैरा मुनव्वर प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस तो कीजिए। अजमतुल्ला साहब ने शायद इंट्रोड्यूस कर दिया। जी हुमैरा मुनव्वर प्लीज, अब आप थोड़ा सा बोल लीजिए। जी प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ देम। We have unmuted all of you, so please, you are able to talk. I have nothing else to talk about now regarding to the curriculum, but I can talk for another 2 hours, but at least if you want me to. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, if you have any ambiguity in your mind, you can ask me and I will
love to answer that regarding to the curriculum and the teaching methodology of grade 6 till 8. Yeah. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, dear. मैम जो प्राइमरी और मिडिल और इसके अलावा जो हायर क्लासेस हैं, इसके जो मतलब फंडामेंटली या बुनियादी तौर पर इसके टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? हमारे जो जूनियर्स हैं ना 1 till 3 वो अभी फोनेटिक्स और डिकोडेबल वर्ड से लड़ रहे हैं, उनको अभी पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफ़िकल्ट अभी वहाँ उस लेवल तक नहीं है। इसलिए हम उनको इस तरह के सवालात देते हैं जिसमें उनकी मेमोराइजिंग या रिमेंबरिंग के जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए। ठीक है? ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत वाज़ेह हमें बता दिया कि जूनियर लेवल पे आपने किस तरह के सवालात उनसे पूछने हैं क्योंकि अभी वो क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं आए हैं। ठीक है? जैसे-जैसे बच्चे अगली क्लासेस में जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहांस होती जाती है और हम उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं और बनाते हैं। You don't have to think a lot. Just buy Cantor books and follow the pattern, the lesson plan, because everything has been designed very wisely according to the capability and according to the Bloom's taxonomy and as designed by the government. ठीक है? तो जिस तरह बुक्स लेवल टू लेवल इंक्रीज होती हैं, बस आप उनको खोलिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। लेकिन हर चीज़ को पढ़ाने का अलग तरीका है। मसलन अगर आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन करानी है ग्रेड 1 में, तो उसका अलग तरीका है। अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग करानी है ग्रेड 6 में, तो उसका अलग तरीका है। अगर आपने क्रिटिकल क्वेश्चन का कराना है ग्रेड 6 में, तो उसका अलग तरीका है। तो हर चीज़ के सेपरेट तरीके हैं, उस पर सेपरेट क्लासेस हो सकती हैं। इफ़ यू वांट अ ट्रेनिंग हाउ टू टीच स्टोरी राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग और क्वेश्चन आंसर सेशन, तो अभी मैंने सिर्फ जिग्सा रीडिंग कराई इस लेवल पे। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ डिटेल में बताई जाए, तो प्लीज़ ड्रॉप अस अ मैसेज। हम सिर्फ एक चीज़ उठाएँगे, मसलन हाउ टू टीच स्टोरी राइटिंग। हमारे यहाँ तो बच्चों को स्टोरी राइटिंग रटवाई जाती है ना, तो हम अपने बच्चों को स्टोरी राइटिंग कैसे करा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं, उस पे कहलाता लेक्चर होगा, उस पे हम आप काम कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? Is Cantab about to publish new edition for 6 and 8 with QR? Yes, we are working on it. We are making new books with the new QR code. Even पुरानी QR codes के साथ भी जो है वो videos बन रही हैं. Inshallah, very shortly you will have your hand on them. Yes, any other question? Yes, inshallah. Before than that, I believe till February 2026, inshallah, you will have all relevant videos regarding to 6 and 8. Yeah, we are working on it. I'm sure. Yes, I would love to answer more if you have anything relevant regarding to the topic in your mind. Just tell me, curriculum समझ में आ गया आप सबको? How curriculum is made and how we use the SLOs in making books and how we can make a difference? Have you got that? कुछ समझ में आया? प्लीज मुझे बताइए। Come on. Okay, I खामोशी नीम रजामंदी होती है। I believe that कुछ समझ में आया ही होगा। Thank you so much. You said that you understood the curriculum and its component well. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ तफसील से बताई जाए कि इस लेवल पे अगर आपने SLO बेस्ड टीचिंग करनी है, तो यकीनन आपको सारी मैथडोलॉजीज़ आनी चाहिए। अगर आपने स्टोरी या समरी को रटा नहीं लगवाना है, तो आपने समरी कैसे लिखवानी है, आपने स्टोरी राइटिंग कैसे सिखानी है और आपने क्रिएटिविटी बच्चों से कैसे करवानी है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ सेपरेट सेशन ऑन इट। तो आई वुड लव टू cater those. If you have any query, any ambiguity left, do drop us a message. We would love to come back to you and teach you whatever we have. Yeah. So I had a lovely time with you.
We would love to have such मेरा आपने spelling mistakes कर दिया, आपने live कह दिया. Doesn't matter, does not matter at all. I got the point. Enough particular SLOs for the text. No, 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 no. You have no idea. सबसे ज़्यादा जो एसएलओज हैं वो टेक्स्ट के ही हैं और टेक्स्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एड्रेस करते हैं, क्योंकि अब मैं भी बुक बना रही हूँ, अब मैं भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो मुझे अब समझ आ रही है कि टेक्स्ट से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा एसएलओज हैं और वो इनफ हैं फॉर अ ग्रेड, ताकि उस पर हम अपना काम किए जाएं. नहीं नहीं, सिर्फ ग्रामर पे नहीं है, टेक्स्ट पे भी हैं एसएलओज और एड्रेस करते हैं हर चीज़ को, हर लेवल की हर चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करते हैं. लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ कैंटअप की बुक लेनी है और जैसे जैसे बुक आपको जहाँ जहाँ ले जाएगी टीचर्स गाइड को यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी वीडियोस नहीं बनी हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे. डोंट यू वरी. ओके, या अगर इफ यू स्टिल इंसिस्ट कि ग्रामर के ज़्यादा है, तो मैं आपको जो है वो इस पे अभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हम इस पे बात कर सकते हैं. जी, अब मेरा मौक़िफ़ ये था, मेरा फ़ोकस ये था कि आप टेक्स्ट पढ़ाने पे फ़ोकस ना करें. टेक्स्ट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. टेक्स्ट के थ्रू हमने जो स्किल सिखाना है उस पे फ़ोकस करें. हमने टेक्स्ट को इसलिए रखा है ताकि हम जो है अपने एसएलओस को जो है वो बच्चों तक, लर्नर्स तक समझा दें. दिस इज़ आवर मेन मोटो, दिस इज़ द फिलॉसफी, दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड इट. We can't say that this SLO is bad and this SLO is good. Every SLO is extremely and equally important according to the level. Even grade 2 students, we have an SLO in which it demands from a learner to come up with a poem. And we have created an activity, a very pretty, beautiful activity in which we have given rhyming words and we've given rest of the verses, but not the rhyming words. The child has to choose from the rhyming word and come up with its own poetry. So the SLO demands us, our child, to come up with their own poetry. Oh, thank you so much, Saidur Rahman. Were you present? Really? Oh, thank you so much. Thank you so much from your feedback. I would love to hear from you. I have 2 more sessions with you. That is 9 till 10. That is 4, 9, 10, and 11, 12 in the next month. I had a lovely time with you. Till the next session. Bye-bye. Allah Hafiz.